S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 minutes तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित -1 minute अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -45 seconds -50 seconds All sequences sound. Stage ready. -45 seconds -40 seconds L110 VHPP open. MOV 79 -33 open. seconds -30 seconds Real-time programs activated. -25 seconds L110 VSPP open. -20 seconds -15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 tracking. M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on, close to 2 tons of propellant being burnt each second. S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल L110 stage ignited. प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the L110 stage strap-ons, performance normal. the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hyperbolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट
कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब Plus यान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L1 turn stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and Plus imparts 4 a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L1 turn stage performance normal. LVM-3M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L1 turn stage thrust cut off and separated. To C25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present Leo altitude stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Creo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं।
India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for Earth-bound maneuvers, translunar injection, and moon-bound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included: a landwehr probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is, the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS, or laser-induced breakdown spectroscope, is included. Another payload is the alpha लॉन्च देख particle रहे थे, ये तो X-ray एकदम फोन कर रहे spectrometer. थे, उल्टी गिनती चालू हो गई। हम कह रहे हटो बाजू। जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और हो प्रोपल्शन चुका, मॉड्यूल में 1 अलग हो गया, पेलोड लगभग भेजा गया है। 20% हिस्सा बचा। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। टीवी तो पूरी मत दी है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है। यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। डाल दिए। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वो यूट्यूब वाले भी कहते हैं ऐसे आप साइन करोगे अब 30,000 मिल जाएंगे, तो 30,000 का वो मिलेगा, वो तो वो है लॉजिकल मनी। वही कह रहे हैं, तो हम पे खूब रमी सर्कल बता सकते हैं। बाद में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। पर एक बार सोचो, As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades, लॉन्च के टाइम पे जो चीफ the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to drive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft.
वैसे obviously logic Insights है, into the यदि behavior of Chandrayaan पूरा- 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrading the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the एक autonomous interesting चीज, navigation एक guidance interesting अगर algorithm सामने दिख of रही है, हम बाद में Chandrayaan नहीं 3 कर पाएंगे वो। to एक plan the interesting flight चीज सामने path दिख रही है, हम to the अपन नहीं कर most पाएंगे। suitable landing spot. साढ़े Engines लगभग of Chandrayaan 3 are 3000 capable किलोमीटर of से भी more आगे निकल gradual चुका है। throttling also. जी है भैया, हमें वैल्यूज नहीं पता होती, हम कोई एरोनॉटिकल साइंटिस्ट नहीं है भैया। वर्तमान में हम प्रमोचन से अरे 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। प्लस पार कर गया था, वही करीब क्या speed होती 950 है। सेकंड पर तृतीय चरण और अभी क्रायोजेनिक सिर्फ इंजन को 825 शट ऑफ कर सेकंड दिया हुए जाएगा। लॉन्च होने के बाद। और 3000 और किलोमीटर उचित चला गया। अभिवृद्धि भाई प्राप्त सही कर बात है, और इसकी speed से भी चंद्रयान तो भागना है, 3 तब तो आगे ऑर्बिट में को प्लेस हो यान से पाओगे। Plus पृथक कर दिया 14 जाएगा। minutes. चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 द्वारा इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट वही तो में कह रहा हूँ। लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। पांचवी बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। सोचो ना, अब फिर जैसे 5 जो अगस्त अभी एक 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। ईमानदारी से काम भी करें। यहाँ यह उचित समय और अमृति में लैंडर मॉड्यूल को पृथक किया करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. हाँ, We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. यार, जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे सही बात है। हम तृतीय कम चरण जीते तो हैं, क्या करें, मिलजुल के गेम LVM-3 खेल रहे हैं। M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है हम सोच रहे हैं कि और ठीक ही देखें, किस्मत उद्दिष्ट है, कक्षा हमारी प्राप्त तो होते ही शुरू हो और जाएगा। उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. कहीं बातें में तालियां बजाने अभी लगी, अभी मैंने पुष्टि कहा की कि गई ना होगा। चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. भाई चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan Orbit 3 में has placed हो attained गया। a major इंजन milestone सेपरेशन हो successfully. गया और लैंडर Chandrayaan 3 जो है mission वो अलग हो accomplished. गए। Handing over to mission director. अरे वो ही भूल जाते, वहीं इस वेस्ट में घूमते रहते। The LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its हाँ, space precise wasting बनता जाता है, satellite वही हम दोस्त injection क्या करवा रहे हो, conditions. टकरा नहीं जाए, LVM-3 लेकिन paste M4 के mission is successful. चीज़ें उठ गए सब लोग सीट से। बस The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch